فیصل آباد میں سرکاری ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ ضلع کونسل میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا احتجاجی دھرنا۔ سرکاری ملازمین نے ضلع کونسل چوک بلاک کر دیا۔ مزید جانیں گے اسی حوالے سے ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، سرکاری ملازمین اور خصوصی طور پر سرکاری اساتذہ کی جانب سے فیصل آباد کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور اسکولوں میں کلاسز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اساتذہ کی جانب سے۔ اور اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں، ضلع کونسل چوک یہ مقام ہے جہاں پر اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مین روڈ ہے پریس کلب روڈ، اس کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ضلع کونسل چوک بند ہونے کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ جو آلٹرنیٹ ٹریفک پولیس کی جانب سے دیا گیا ہے روڈ، وہاں پر بھی ٹریفک کی روانی جو ہے وہ خاصی مشکل جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب یہ جو اساتذہ ہیں ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، مختلف اسکولوں کے اساتذہ یہاں پر اکٹھے ہو گئے جن کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جو گزرنے والے مسافر ہیں جو روڈ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آلٹرنیٹ کی طور پر دوسرا روڈ استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو چوک گھنٹہ گھر کے سے تھوڑا سا آگے ہی ضلع کونسل چوک میں یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور جو کاروباری ہب ہے فیصل آباد کی، وہاں سے آنے والی جو ٹریفک ہے ان کو بھی یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سرکاری ملازمین خصوصی طور پر سرکاری جو اسکولوں کے اساتذہ ہیں جن میں خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور احتجاج کے نتیجے میں جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہے اور ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا۔ بہت شکریہ آنے کے لیے ارسلان۔ لاہور میں دوران احتجاج اساتذہ کی گرفتاری کا معاملہ۔ ٹوبہ میں اگیگا اور پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر تدریسی عمل کا بائیکاٹ۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کا دھرنا، طلبہ بھی باہر نکل آئے۔ مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی سرکاری اسکولوں کے ٹیچر اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں۔ ضلع بھر کے تمام پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں میں آج تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ طلبہ جو ہے اپنے کلاس روم سے باہر آ چکے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں انہوں نے اسکولوں کے باہر دھرنا دے دیا ہے، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں اور نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف اسکولوں سے احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں اپنے مطالبات کے حق میں۔ اور ٹیچرز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح لاہور میں ان کے ساتھی جو ٹیچرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف رولز ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پر وہ سراپا احتجاج ہے اور جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ تاہم مرد و خواتین دونوں اسکولوں میں ٹیچرز کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیچرز نے جو طلبہ ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بے شک کل سے اگر اسکول نہ آنا چاہیں تو وہ اسکول نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے لیے بھی ابھی اسکولوں کی رجسٹری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم ٹیچرز نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ ان کا جو اہم مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دی جائے اور جو ٹیچر ساتھی گرفتار کیے گئے ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ بہت شکریہ کرنے کے لیے مبشر۔ اگیگا اور پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر تعلیمی عمل کا بائیکاٹ۔ جھنگ کے اسکولوں میں تدریسی عمل تعطل کا شکار۔ اساتذہ کی جانب سے اسکولوں میں دھرنے اور احتجاجی ریلیاں۔ احتجاجی اساتذہ نے لاہور دھرنے کے گرفتار ملازمین کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، اگیگا اور پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر جو ہے آج تمام تر اسکولوں کے اندر میں بیشتر اسکولوں میں تدریسی عمل جو ہے وہ مکمل تعطل کا شکار ہے۔ اساتذہ کی جانب سے احتجاجی طور پر جو ہے وہ اسکولوں میں دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو ہے وہ بیشتر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ تعلیمی عمل کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ اساتذہ کی جانب سے سیاہ پٹیاں باندھ کر جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اگیگا کی جانب سے جو ہے وہ بجٹ کے بعد سے جو ہے وہ پے پروٹیکشن کے حوالے سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پینشن رولز، لیو انگیجمنٹ سمیت جو ہے وہ دیگر مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے گئے تھے۔ تاہم جو ہے وہ گزشتہ روز جو 12 اکتوبر کو جو ہے سیکریٹریٹ کے باہر اساتذہ کی جانب سے دھرنا دیا گیا، جس میں سرکاری ملازمین کی مبینہ گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ آج تمام تر ٹیچرز کی جانب سے شدید ترین احتجاج کرتے ہوئے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا ہے، جبکہ محکمہ تعلیم کے سرکاری ملازمین بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے اساتذہ کے جو ہے حوالے سے احتجاج کی تو تمام تر تدریسی عمل کے بائیکاٹ کے باعث جو ہے وہ طلبہ و طالبات جو ہے وہ تعلیمی عمل ان کا مکمل طور پر رک گیا ہے، اور جبکہ جو ہے اساتذہ کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے جو تمام تر ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں اور جو غیر تدریسی جو ڈیوٹیز جو ہیں وہ اساتذہ کی لگائی گئی تھی اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات جو ہے منظور نہیں کیے جاتے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، جبکہ جو ہے مرکزی طور پر مطالبہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ جن سرکاری ملازمین کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جائے، ورنہ احتجاج کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
लाहौर में दौरान एहतजाज असातिज़ा की गिरफ्तारी का मामला। तहसील चौक चिन्योट में असातिज़ा का एहतजाज लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं, लाहौर में दौरान एहतजाज असातिज़ा की गिरफ्तारी का मामला। तहसील चौक चिन्योट में असातिज़ा का एहतजाज लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की मराहत के अंदर जो कमी की गई है, तनख्वाहों के अंदर, इसी तरह लीव इनकैशमेंट और पेंशन के अंदर जो रूल्स के अंदर तरामीम की जा रही है, उसके खिलाफ असातिज़ा की जानिब से एहतजाज जारी है। अगर इस एहतजाज के बारे में बताया जाए कि गुज़श्ता रोज़ भी असातिज़ा की जानिब से तहसील चौक के अंदर एहतजाज किया गया था। आज भी तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी तहसील चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का यही कहना है कि हुकूमत जब तक जो असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है, फीमेल स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता तब तक यह एहतजाज जारी रहेगा। दूसरा, मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि जब तक लीव इनकैशमेंट और पेंशन के रूल्स के अंदर तरमीम को वापस नहीं लिया जाता और पहले की तरह जैसे केपीके के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर किया गया है, वैसे पंजाब के अंदर पेंशन के रूल को पहले की तरह बहाल नहीं किया जाता, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। असातिज़ा की बड़ी तादाद इसके अंदर शरीक है। अगर बात की जाए, सरकारी स्कूल तकरीबन तमाम बंद किए गए हैं, तालाबंदी की गई है मुकम्मल। सरकारी इदारों के अंदर क्लर्क्स हज़रात ने काम करने से इनकार कर दिया है तालाबंदी के बाद। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद और असातिज़ा की बड़ी तादाद इस टाइम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चिन्योट के अंदर तहसील चौक के सामने एहतजाज करी है। और मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक वो इस एहतजाज करने के लिए बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर, अपडेट करने के लिए। चिन्योट में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में तालीम का हर्ज। असातिज़ा अपने एहतजाज में तलबा को ज़बरदस्ती शामिल करने लगे। असातिज़ा तालिब इल्मों को तालीम देने की बजाय नारे लगवाने लगे। वालिदैन ने असातिज़ा से बच्चों को सियासत में इस्तेमाल ना करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में तालीम का भी काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो रहा है। गुज़श्ता 4 दिन से सरकारी मुलाजमीन असातिज़ा जो एहतजाज पर हैं, जिसकी वजह से तालीमी इदारों में कल भी तालाबंदी की गई थी, आज भी तालाबंदी है। जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं वो इस वक्त असातिज़ा के एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं। उनको बताया जा रहा है कि क्लासेस में जाने की बजाय हमारे एहतजाज में आया जाए। इस वक्त चिन्योट के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज के जो असातिज़ा हैं, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। ख़वातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी इस एहतजाज में शरीक है। इसके साथ साथ टीचर्स के साथ साथ जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी एहतजाज पर है। इनका ये कहना है कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन के जो हुकूमत की जानिब से तरामीम की जा रही हैं कवानीन में, इनको वापस लिया जाए। इन कवानीन के वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। ताहम गुज़श्ता 2 दिन से स्कूलों और कॉलेज की तालाबंदी की वजह से स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो पढ़ने की वजह से पढ़ाई रही। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन के हकूक का अजाला करना मुमकिन ना रहा। 12 दिन गुजरने के बावजूद भी तनख्वाह के हवाले से अच्छी खबर सामने ना आ सकी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन में तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन के हकूक का अजाला करना मुमकिन ना रहा। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। फैसलों की महंगी बिजली पर रिकवरियां बढ़ाने के लिए मुबैना ओवर बिलिंग। फैसलाबाद मदीना टाउन सब डिवीजन के सारिफ को ओवर बिलिंग। घरेलू सारिफ को बिल में 500 यूनिट ज़ायद डाल दिए गए। सारिफ को 700 का बिल भेजा गया। बिल सिटी 41 ने हासिल कर लिया। सारिफिन का कहना है महंगी बिजली पर फेस्को ओवर बिलिंग कर रहा है। आपको बता रहे हैं, फेस्को की महंगी बिजली पर रिकवरियां बढ़ाने के लिए मुबैना ओवर बिलिंग। फैसलाबाद मदीना टाउन सब डिवीजन के सारिफ को ओवर बिलिंग। घरेलू सारिफ को बिल में 500 यूनिट ज़ायद डाल दिए गए। सारिफ को 700 का बिल भेजा गया। बिल सिटी 41 ने हासिल कर लिया। बात करेंगे इसी हवाले से। मौजूद है हमारे साथ अवैस अली। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जो है वो रिकवरियाँ पूरी करने के लिए मुबैना तौर पर सार्फिन को ओवर बिलिंग जो है वो सामने आ रही है। मदीना टाउन सब डिवीजन की जानिब से सार्फ जो है वो उसके इस्तेमाल शुदा यूनिट से 500 यूनिट से जायद डालकर जो है वो बिजली का बिल भेज दिया गया है। सिटी 41 ने जो है वो बिल हासिल कर लिया गया है। बिल में देखा जा सकता है कि सार्फ को उसके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर नहीं बल्कि 500 यूनिट्स की जायद ओवर बिलिंग करके सार्फ को जो है वो बिल डाला गया है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से फेस्को को अपनी रिकवरियाँ पूरी करने के टारगेट दिए गए हैं, मगर हम देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी इससे मुनफरिद दिखाई देती है। रोजाना की बिदात पर ऐसे बिजली के बिल सामने आते हैं जिनमें फेस्को की जानिब से मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग की जाती है। ये मदीना टाउन सब डिवीजन का कंज्यूमर है, जिसकी जानिब से एक माह में 200 यूनिट इस्तेमाल किए गए थे, मगर फेस्को की जानिब। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस।
न्यूज़ अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, गल्ला मंडी फैसलाबाद में अशिया की कीमतों में बड़ी कमी। लाल मिर्च 15,000, चावल बासमती 6,500 रुपये फी बैग हो गया। दालों की कीमतों में 50 से 100 रुपये तक कमी वाक़या। कीमतों में कमी डॉलर की कम होती कीमतों के बायस हुई। आपको बता रहे हैं, गल्ला मंडी फैसलाबाद में अशिया की कीमतों में बड़ी कमी। लाल मिर्च 15,000, चावल बासमती 6,500 रुपये फी बैग हो गया। दालों की कीमतों में 50 से 100 रुपये तक कमी वाक़या। कीमतों में कमी डॉलर की कम होती कीमतों के बायस हुई। आपको बता रहे हैं, गल्ला मंडी फैसलाबाद में अशिया की कीमतों में बड़ी कमी। लाल मिर्च 15,000, चावल बासमती 6,500 रुपये फी बैग हो गया। दालों की कीमतों में 50 से 100 रुपये तक कमी वाक़या। चीनी 135 रुपये किलो हो गई। घी की कीमतों में भी कमी हुई। दाल माश 450, दाल मसूर 250 रुपये किलो में दस्तियाब। चना सफ़ेद 55 रुपये सस्ता, 260 रुपये किलो में फ़रोख्त। दाल चना 44 रुपये सस्ती, 170 रुपये किलो में दस्तियाब। कीमतों में कमी डॉलर की कम होती कीमतों के बायस हुई। अलार अस्पताल फैसलाबाद में मॉडल ऑपरेशन थिएटर सुस्त रवि का शिकार। अमराज चश्म, हड्डी पट्टा जोड़ और नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर शामिल। डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन ताखिर का शिकार होने लगा। तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की हदायत पर फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे थे, जो कि जरासीम से पाक होंगे। मरीजों को बेहतर इलाज की जो सहूलियात हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक के जो कवानीन है उसके मुताबिक फराहम की जा सकेगी। 3 ऑपरेशन थिएटर ऐसे हैं जिनका अभी तामीराती काम रहता था, कब तक मुकम्मल होंगे, जिसके बाद जो 3 ऑपरेशन थिएटर हैं जिसके वो मरीजों के ऑपरेशन जो थे वो 3 ऑपरेशन थिएटर में जो थे वो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। अब 3 ऑपरेशन थिएटर के फाल होने से कब से वो ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फेम यूसुफ साहब मौजूद हैं। सर बताएं, कब से ये फाल होने जा रहे हैं? जी, ये 3 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स जो थे वो तकमील उनकी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी जो कि एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी। अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो डिटेल में देंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीक आम पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। आम पब्लिक के लिए सर कितनी इसके ऊपर कास्ट आई है और कौन कौन से ये ऑपरेशन थिएटर हैं? 3 जी, ये 390 मिलियन इस पे कॉस्ट आई है। 2019-20 की स्कीम है। इसमें टोटल 7 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स जो कि जदीद थिएटर्स बनने थे, 4 उसमें ऑलरेडी फंक्शनल हो गए थे। 3 ऑपरेशन थिएटर्स अभी तकमील उनकी जारी थी, तो उनकी तकमील कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीक उसकी इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट के बाद इसको आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिससे मरीज़ों को बेहतर अंदाज में खिदमत फराहम की जा सकेगी। बिल्कुल, दिन अमराज चश्म की से बात की जाए तो उसमें अमराज चश्म का वार्ड शामिल है, इसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर आर्थोपेडिक शामिल है और ENT का ऑपरेशन थिएटर शामिल है, जो कि आप बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए असदार। जंग में असातिज़ा का एहतजाज, स्कूलों में इंसदाद डेंगू की सरगर्मियाँ भी तातुल का शिकार हो गई। महकमा तालीम के 179 यूजर्स ने गुज़िश्ता रोज़ कोई एक्टिविटी ना की। आपको बता रहे हैं, जंग में असातिज़ा का एहतजाज, स्कूलों में इंसदाद डेंगू की सरगर्मियाँ भी तातुल का शिकार हो गई। महकमा तालीम के 179 यूजर्स ने गुज़िश्ता रोज़ कोई एक्टिविटी ना की। मज़ीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में असातिज़ा की जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से असातिज़ा की जानिब से जहाँ तालीमी अमल का बाइकआउट किया गया है, वहीं पर गैर तदरीसी अमल के साथ साथ इंसदाद डेंगू के हवाले से भी तमाम तर स्कूलों की जानिब से बाइकआउट किया गया है, जिसके बायस जो डेंगू एक्टिविटीज तातुल का शिकार है। गुज़श्ता रोज़ में महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में एजुकेशन के 179 यूजर्स जो हैं वो डोरमेंट गए हैं। उनकी जानिब से कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं की गई। असातिज़ा की जानिब से आज भी इंसदाद डेंगू मुहिम से मुकम्मल बाइकआउट करने का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। यहाँ आपको बताएं, JC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पायदार ज़राअत और मौसमियाती तब्दीली पर सेमिनार, प्रोफेसर डॉक्टर साइमा अकरम ने सदारत की। बात करेंगे इसी हवाले से खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किचन गार्डनिंग और क्लाइमेट वेदर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें से तालबात को बताया गया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो होता है और किस तरह से हम जो किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, किस तरह से जो घर में हम अपनी सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। क्योंकि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, तो वैसे भी अगर देखा जाए आज जो चीज़ हम जो घर में उगाते हैं, घर में बनाते हैं, उसकी वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। बाहर से कोई चीज़ लेते हैं, हमें नहीं पता कि वो ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है या नहीं है। मेरे साथ इसी हवाले से जो है प्रोफेसर साइमा अकरम मौजूद आएंगे, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आज जी बताइएगा, आज जो है सेशन हुआ, हमारे बहुत से जो है वो तालबात ऐसी होती है जिन्हें इल्म नहीं होता या फिर थियोरेटिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे सेमिनार्स होते हैं, बहुत इंटरेक्शन होता है, पार्टिसिपेशन होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से? जी, आज हमारा एक
वन डे सेमिनार था इंटरनेशनल ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडर क्लाइमेट चेंज। आपको जैसे कि पता है कि इस वक्त जो क्लाइमेट है चेंज है ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है और इसके अंदर डिफरेंट हमारी जो स्पीशीज़ हैं चाहे वो फूड से रिलेटेड हैं या ग्रेन से रिलेटेड हैं वो इंस्टिंक्ट हो जाती है अंडर जब हाई टेम्परेचर्स होते हैं। तो इस वक्त नीड है इस चीज़ की कि हमें इस चीज़ का नॉलेज हो कि हमने कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी अडॉप्ट करनी है न्यू टेक्निक्स जिनकी मदद से हम अपनी जो फार्मिंग है और अपनी तमाम किचन गार्डनिंग है उसको मौसर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। इस हवाले से जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर आबदा कौसर, इन्होंने बड़ी मेहनत से एक दिन का जो सेमिनार है मुनक्कद कराया। इसमें ना सिर्फ हमने नेशनल बहुत शुक्रिया ख़ज़ा लियाकत अपडेट करने के लिए। शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान अगर हयात होते तो आज 76वीं सालगिरह मनाते। मौसीकी के बेताज बादशाह को उर्दू ज़बान में सूफ़ी गुलकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कवाल के तौर पर जाना जाता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी तमाम उम्र कव्वाली के फ़न को सीखने और इसे मशरिक़ व मगरिब में मकबूल आम बनाने में सर्फ कर देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने फैसलाबाद के कव्वाल घराने में 13 अक्टूबर 1948 को आंख खोली। वल्द फ़तेह अली ख़ान और ताया मुबारक अली ख़ान अपने वक्त के मशहूर कव्वाल थे। 16 साल की उम्र में कव्वाली का फ़न सीखा। कव्वाली के साथ गज़लें, क्लासिकल और सूफ़ी गीत भी गाए। सुरों के शहजादे ने मगरिबी साजों को इस्तेमाल करके कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जोहद बख्शी। इनकी कव्वाली द मस्त कलंदर अली अली को आलमी मकबूलियत हासिल है। मशहूर हमद कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरी जिंदगी है तो किसी दा यार ना विछड़े, ये जो हल्का हल्का सुरूर है समेत कई कव्वालियां आज भी अजीम गुलकार को जिंदा रखी हुई हैं। आज भी कव्वाल इनके गाए हुए कलाम गाकर ना सिर्फ तस्कीन हासिल करते हैं बल्कि अवाम में भी मकबूल होते हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली के 125 से ज्यादा ऑडियो एल्बम जारी हुए। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।